Good morning, everyone. Welcome back. Let's move ahead today with our second chapter of social studies, and that is First World War and the Russian Revolution. Now, in a previous lecture, we had done in detail, which could be asked as for your 4-marker, that is factors that led to the First World War. And we already have seen that there were many such factors due to which First World War broke out. And it started with the Germany and France Sedan War, and then there were point-wise that we did was the economic factors. That is how Germany entered into the market in Africa and Asia and started selling goods at cheaper rate compared to the England and France product, and thus there was a big economic competition between Germany and England. Then we also did related to this militarism. That is how each and every country, under fear and doubts and distrust and all, they started producing more arms and ammunition. And the reason that they gave for this more production of weapon was, simple reason they gave, that it was for self-protection. But it was not so. There was fierce competition arising between these countries. And Italy, Germany, Japan made military training compulsory in their country. Then we moved ahead that time with the groupism, मतलब कि लोगों का ग्रुप बनने लगा, अलग अलग दो चार कंट्रीज अपने अपने ग्रुप बना रही थी और सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर रही थी. And a feeling of jealousy, enmity, no trust on each other, fear, hatred, as we had discussed in the previous lecture, that how all these negative qualities started cropping up between these groups. And this also was very important reason for First World War. फिर हमने आगे एक और भी पॉइंट किया था, that was feeling of strong nationalism, मतलब कि देश को प्यार करना, good. But अगर कोई ये सिखाए that we are the best and hate the other countries, other religion, so that is very wrong. So that feeling was created among the people, and by that is the feeling of fierce nationalism, and that also led to the First World War. और कई तो ऐसे ही मानते थे that they believed in world leadership, like German chief Kaiser Wilhelm. He was the one who gave birth to nationalism and colonialism. He was so ambitious. He believed that there should be world leadership, मतलब एक country पूरे world को rule करे. So all these feelings of negativity and all started spreading all over the world. And we did 2 more last time. That is role of newspapers. अब newspaper का काम है सही बात बताना. The reporters should provide such news which are true and which supports the country's development. But यहाँ पे कुछ गलत हो रहा था. हर एक यूरोपियन नेशन के न्यूज़पेपर्स कुछ hatred, full of hatred was there in their reports, and जो भी reports वो लोगों तक पहुंचाते थे वो सारे provocative थे और exaggerated थे, गलत थे, and आधे अधूरे न्यूज़ मिलते थे लोगों को. So this also you could consider as one of the reason for First World War. And we did philosophy about war. The sixth and the last point about it was कि यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में एक अलग थॉट ग्रो होने लगा था. लोगों की सोच कुछ इस तरह से थी कि पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर. ये लोग मानने लगे थे कि लड़ाई करो सबकी भलाई के लिए है ये. जर्मन राइटर ट्रॉस्की ने तो यहाँ तक अपना थॉट प्रेजेंट किया कि जो माइटी होगा वही जिंदा रहेगा. एंड ही ऑल्सो सेड कि आज हमारे देश की नेसेसिटी क्या है, तो वॉर. फिर और एक जर्मन राइटर ने ये बताया था, दैट इज नेत्से, दैट वॉर तो एक बहुत ही सेक्रेड वर्क है. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था. द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर दिस थिंग हैपेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. That was related to the Prince of Austria and his wife murder, right? Now we move ahead with a fresh part of this lecture, and that is the First World War.
In the First World War, how many countries supported the Allied nation? That is 24. और Axis को कितने countries ने support किया था? That is 4. Now you can just take it this way to remember कि Allied that is all friendly nations, Axis जो opposite party दुश्मन party, तो you can take it as Italy, then Germany. These are all Axis, whereas England, France, etc. were Allied countries. तो Allied countries के ग्रुप में 24 nations आ गए, Axis में 4 थे. Germany made great victories in Europe. अब जर्मनी स्टार्टिंग में तो बहुत ही विक्टोरियस रही यूरोप में. उसने फ्रेंच आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था. इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप ऑफ दिस एलिड नेशन. तो जर्मनी के काफ़ी नोटवर्दी विक्ट्रीज हैं. बहुत सारी वॉर जीती हैं उसने और फ्रेंच को भी डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने, फ्रेंच आर्मी को. मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस. अब ये वॉर में जो पॉइजनस गैस जो रिलीज हो रहे थे तो उसकी वजह से काफ़ी सोल्जर्स तो मर ही गए, लेकिन काफ़ी सिविलियंस भी मरे. इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू लर्न इट. अ नोट ऑन रशियन रिवॉल्यूशन. तो अब जब रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 में, तो जबकि रशिया में खुद की कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो नेचुरली वो वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर गई. सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. अब देखो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई थी? 1914, एंड हुई 1918, मतलब 4 साल चली. लेकिन 1917 में मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब चल ही रही थी कि रशियन रिवॉल्यूशन आ गया और रशिया ने विड्रॉ कर लिया. और स्ट्रॉन्ग उस टाइम कौन था? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बन रहा था, दैट इज जर्मनी. नाउ जर्मनी मैनेज टू ड्राउन एन अमेरिकन स्टीमर कॉल्ड ल्यूसिटेनिया. और इस अमेरिकन स्टीमर में अमेरिकन सोल्जर्स जो 147 थे वो मर गए. वंस अगेन, व्हाई रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर? That is because of in his own country a revolution broke out. Next, in which year Russian revolution took place? 1917. How many countries supported Allied? 24. How many countries supported Axis? 4. How many American soldiers died in this attack of Germany on American steamer? That is 147. What was the name of that American steamer that was drowned by Germany? That is Lusitania. Now, अब अमेरिका के अगर 147 सोल्जर्स मर जाते हैं, उनकी स्टीमर को ड्राउन किया जाता है बाय जर्मनी, नेचुरली रिजल्ट तो कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है. कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट ये आया कि अमेरिका जो चुपचाप एक बाजू अपना काम कर रही थी, had jumped in this First World War. Actually, America was not a part of the First World War. But क्योंकि जर्मनी ने आके उसे अटैक किया, it had to take revenge against Germany. तो naturally जर्मनी यहाँ पे थी, इटाली एंड ऑल एक्सिस पार्टी, और यहाँ पे थे फ्रांस, इंग्लैंड एंड ऑल. तो अमेरिका कहाँ चली गई? इट केम एंड लैंडेड विद दिस एलिड कंट्रीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. And then it so happened कि America then joined this allied nation for the war in which year? That is in April 1917. Now with this, countries like Panama, then there is Greece and Cuba and China and Siam, they all started joining allied countries. अब जैसे ही अमेरिका ने जाके ज्वाइन किया 1917 में इन अप्रैल एलिड कंट्रीज़ को, तो धीरे 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 बाकी की बहुत सारी कंट्रीज आके उनको ज्वाइन कर गई. पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम. Thus allied countries started becoming stronger. German army could not withstand these American troops.
अब जर्मन आर्मी अकेली अमेरिका के सामने तो चलो भाई जाके उसने उसे अटैक किया था, बट अब ये जॉइंट फोर्स जो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था डे आफ्टर डे, दिस एलिड नेशन, उसके सामने जर्मनी खड़ी नहीं रह पाई. द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज्ड. जो स्ट्रॉन्ग था जर्मनी वो वीक हो रहा था और एलिड कंट्री स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. एंड बल्गेरिया इन सितंबर 1918, Turkey and Austria in October 1918, they also came and joined the allied nation. German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Abdicated मतलब छोड़ दिया. जर्मन लीडर केजर ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और वो भाग गए. Germany had to surrender to allied countries and signed a ceasefire treaty और एक agreement साइन की to stop the war, go back to the original position, and the war came to an end. अब इतनी बड़ी जो 4 साल जो वर्ल्ड वॉर चली, नेचुरली उसके इफेक्ट तो होने ही हैं. सो लेट्स सी व्हाट वर इज इमीडिएट इफेक्ट्स. नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल. करोड़ों लोग मरे, इंजर्ड हुए, लेकिन साथ साथ प्रॉपर्टी भी उतनी ही डिस्ट्रॉय हुई थी. अप्रॉक्स 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर. मतलब कि 6.5 करोड़ लोगों ने वॉर में हिस्सा लिया. एटलीस्ट उसमें से 1 करोड़ तो मर गए, 2 करोड़ इंजर्ड, 70 lakhs परमानेंटली हैंडीकैप्ड. मतलब कितने लोग नहीं रहे 6.5 करोड़ में से? नियरली 50%, क्योंकि 1 करोड़ मर गए, 2 करोड़ इंजर्ड, 70 परमानेंटली हैंडीकैप्ड. तो 50% नियरली यू कैन से नाउ वो माइनस. मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, भूखमरी, and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. अब जो वॉर में जो खर्चा हुआ था वो तो काफ़ी ऊंचा था. और दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि यहाँ से जितने लोग जो मर रहे थे, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मरे वो ड्यू टू स्टार्वेशन. फिर एपिडेमिक्स फैल चुका था, मतलब कि रोग. सो देयर वाज लॉस ऑफ मैन एंड मटीरियल. फिर आ रहा है सोशल चेंज, मतलब सोसाइटी में चेंज तो आना ही है. फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट यू कैन सी द सिचुएशन दैट वी आर लिविंग इन. तो कहीं ना कहीं सोशल चेंज आ जाते हैं हमारी सराउंडिंग में, ड्यू टू समटाइम इज ड्यू टू वॉर, समटाइम इज ड्यू टू एपिडेमिक्स, एंड देयर आर मेनी रीजन्स इन दिस लाइफ ऑफ पीपल कि सोसाइटी में चेंज आते रहते हैं. तो यही हुआ यहाँ पे भी. अब हुआ ये कि ड्यूरिंग द वॉर सारे मेन तो चले गए वॉर पे, वॉर फील्ड पे लड़ाई करने, मोस्ट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ देम, एंड विमेन वो एट होम. तो उनके काम बढ़ गए, जैसे कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, एट द सेम टाइम पैसे भी कमाने निकल पड़ी वो बाहर, जो अब तक वो नहीं जा रही थी. अब जैसे ही इन्होंने घर के बाहर पैर रखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कमाने की, तो दिस लेडीज स्टार्टेड मीटिंग अदर पीपल इन देयर एट देयर वर्क प्लेस, और एक्सपोजर मिलने लगा उनको. देयर वाज वाइड एक्सपोजर इन देयर लाइफ नाउ. और काफ़ी चीज़ें जो उनको घर में बैठ के पता नहीं चल रही थी वो अब पता चल रही है. अब धीरे धीरे ये लेडी स्ट्रांग हो रही थी, अपने हक के लिए लड़ाई शुरू करने लगी, वोटिंग राइट्स मांगने लगी, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन वाज आस्क्ड बाय देम. तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई थी, काफ़ी नेगेटिव भी इस समय में. तो लेट्स सी. ड्यूरिंग द वॉर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेन वर ऑन द वॉर फ्रंट ऑफ ऑल द कंट्रीज, women shoulder that is picked up the responsibility of family and occupation. So they stepped out of their house and successfully took over the responsibility in the different professional fields like teacher, doctor, lawyer, etc.
It could be any profession. The self-confidence of their being equal to men enhanced. अब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ने लगा. रिजल्ट ये आया that the demand for women to exercise their voting right was raised. अब उन्होंने वोटिंग राइट्स मांगी. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. अब क्योंकि एक बाजू वॉर चल रही थी तो बेसिक नेसेसिटीज जो फैक्ट्रीज में बन रहे थे वो कहीं पे कम हो गए. तो नेचुरली अब सोसाइटी में नए प्रॉब्लम्स आ गए, जैसे कि स्केर्सिटी, मतलब चीज़ें नहीं मिल रही थी. अब कोई भी रीज़न की वजह से अगर स्केर्सिटी आ जाती है, मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ग्रीनरी, many things, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तो शेल्टर को अभी साइड में रख दो, फूड एंड क्लोथिंग. तो ये जो हमारे लाइफ की नेसेसिटीज़ है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हमें. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट फूड ओवर हियर. तो ग्रीनरी और ये सब कम प्रोड्यूस हो रहा है. बाकी की नेसेसिटीज़ लाइक से soap and toothbrush and toothpaste and milk product, काफ़ी ये सारी चीज़ें स्केर्सिटी में आ गई. अब जैसे स्केर्सिटी आई मतलब कि प्राइसेस बढ़ने लगे, फिर लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लोग भूखमरी में मरने लगे. स्टार्वेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स. स्ट्राइक मतलब लोग हड़ताल पे चले गए अपने वर्क एरिया में. लॉकआउट्स मतलब कई फैक्ट्रीज पे ताला लग चुका था. ऑल दिस रेज्ड हिज हेड, मतलब ये सारे प्रॉब्लम ग्रो होने लगे. पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पथेटिक. पथेटिक मतलब वर्स्ट. नाउ योर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल आंसर. द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जून 1919. At the end of the First World War, now you need to remember this, and before remembering, understand it very clearly. At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of these allied countries brought an end to the war. अब हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड आ चुका, राइट? अब कैसे आया? तो अमेरिका जो इस वॉर का हिस्सा नहीं थी, जर्मनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी. एक्सिस कंट्री दैट इज जर्मनी, इटली का पॉसिबिलिटी उसकी दिखाई दे रही थी वॉर जीतने की. एलिड साइड थे इंग्लैंड, फ्रांस. लेकिन हुआ ये कि जर्मनी ने जैसे अमेरिका को अटैक किया तो अमेरिका भी कूद पड़ी इन दिस वॉर ऑन द साइड ऑफ एलिड नेशन. उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी आ गई एलिड नेशन को सपोर्ट करने. नेचुरली तो यहाँ पे जर्मनी को तो हारना ही था. अब जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, मतलब कोई भी कंडीशन उसने रखी नहीं, सरेंडर हो गई वो इन फ्रंट ऑफ द एलिड कंट्रीज. इस तरह से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड. Then the Allied countries undertook the peace process in Paris. मतलब अब Allied countries ने एक peace process follow किया. Process मतलब कि एक systematic formation हुआ, एक particular you can say agreement का, एक conference हुई in which some 58 commissions were formed. तो इस particular peace process में 58 ग्रुप्स बने, कमिटीज बनी, एंड 145 मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सेशंस. एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग दिस पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेल्स. अब ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी और ये एग्रीमेंट कहाँ पे साइन करवाई गई बाय जर्मनी, राइट? तो जर्मनी को साइन करना पड़ा था ये एग्रीमेंट because it had surrendered, it had lost the war. तो ये सब कुछ हुआ था in the Mirror Palace, and thus it came to be known as the Versailles Treaty. तो क्योंकि ये ट्रीटी मिरर पैलेस एट वर्सलिस में साइन करवाई गई थी इसीलिए, और ये सब मीटिंग वगैरह हुआ था यहाँ पे, तो इस एग्रीमेंट का नाम बना वर्सलिस ट्रीटी.
देयर वर 4 प्रोविजंस, मतलब प्रोविजन मतलब 4 ऐसी चीज़ें प्रोवाइड हुई थी, लिखी गई थी इन दिस ट्रीटी। तो देखते हैं ये 4 प्रोविजन क्या थे। फर्स्ट, रीजनल अरेंजमेंट, मतलब कैसे रीजन को अरेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक जर्मनी का एक पर्टिकुलर पार्ट कौन ले रहा है, एक अदर पार्ट कहाँ पे जाएगा, किसके हाथ में जाएगा। सो ऑल दिस रीजनल अरेंजमेंट वॉज टेकिंग प्लेस। देन रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, कि चलो हम मिलिट्री पावर थोड़ा कम कर देंगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का प्रोडक्शन कम करना है, दैट इज डिसआर्मामेंट। अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन, फिर ये भी डिसाइड किया गया कि हम जो इस वॉर में जीते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें एट द एंड ऑफ द वॉर। अदर प्रोविजंस वर मैनी, लाइक यू कैन से कि वॉर फाइन कितनी रखनी है और कौन से जर्मनी के पार्ट कैप्चर करने हैं और किसके हाथ में जाने चाहिए, वो काफ़ी कुछ लिखा हुआ था उस एग्रीमेंट में। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, British PM Lord George, French President Clemenceau, Italian President Orlando played a great role in this formation of this agreement. Germany was found responsible for the war naturally. ये जब सब हुआ तो सबने यही माना, और ये एक्सेप्ट भी सारी कंट्रीज जो जीती थी उन्होंने यही कहा कि हाँ भाई ये 4 साल जो लंबी वॉर चली वर्ल्ड में, दैट वाज बिकॉज ऑफ जर्मनी, और हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है हमारी कंट्रीज़ में इंडिविजुअली, तो उस पे बहुत बड़ा फाइन हमें लगाना होगा। सो अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज टू बी गिवन बाय जर्मनी टू देम। फिर इट हैड टू गिव अवे इट्स रूल रीजन टू फ्रांस। इस राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। अब जर्मनी की जो राइन रिवर थी वो अब तक बंद थी, तो वहाँ से को बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी, वो रास्ता ही बंद था, तो वो खोल दिया गया इंटरनेशनल सी रूट के लिए। द राइनलैंड रीजन ऑन फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बीइंग अ फोर्ट्रेस, एज वेल एज दिस मिनरल रिच रीजन वॉज गिवन अवे टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। मतलब कि फ्रांस के बॉर्डर पे जो एक राइनलैंड रीजन था, वहाँ पे जो बहुत बड़ा एक फोर्ट्रेस बना हुआ था, दैट वाज नाउ नॉट टू बी एक्सेप्टेड। मतलब कि सब कुछ अब फ्रांस के एडवांटेज में था, जो अब तक जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था वो फ्रांस के हाथ में आ गया। प्लस एक मिनरल रिच रीजन था वो भी फ्रांस को मिल गया 15 साल के लिए यूज़ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर कैप्चर्ड, मतलब confiscated. Alsace and Lorraine were to be given back to France. अब फ्रांस से जो ले लिया गया था, जर्मनी ने जो ले लिए थे फ्रांस के 2 हिस्से एल्सेक एंड लॉरेन, वो वापस उसको दे दिए। Besides this, Germany was to give to France and other allied countries a large amount of coal and iron annually, मतलब हर साल a huge quantity of coal and iron Germany had to give to them as the benefits of war. Germany was made to sign this terms and condition on gunpoint. On gunpoint मतलब जैसे तुम्हारे यहाँ पे अगर रिवॉल्वर ला के रख दे, वेरी मच सिंपल इट इज, कंपल्जन में, right? It was made to sign this treaty on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness, मतलब एक कड़वाहट आ गई, and desperation, मतलब एक they became very desperate, frustrated कि अब कुछ तो करना ही होगा, ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारा, we are humiliated in front of the world। तो इतनी कड़वाहट इंक्रीज होने लगी जर्मन्स में। दैट वाज अगेन द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो कॉन्सिक्वेंटली जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिजरेबली, एंड
लेट्स डू दिस लास्ट पॉइंट ओवर हियर. अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुए? देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी. अब यहाँ पे ये हुआ कि जब ट्रीटी साइन की गई तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी सबके मन में? रिवेंज. सो अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद अ नेशन दैट वर डिफीटेड इन द वॉर. पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विद दिस ट्रीटी. ट्रीटी का नाम क्या था? पीस प्रोसेस. लेकिन पीस तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी. राइट? अब देखो, जैसे हम सीड्स सो करते हैं और तुमने चलो भाई आज के दिन अच्छा पानी भी पिला दिया, तो कल सुबह जब देखा गार्डन में तो उस सीड में से बड़ा प्लांट आ गया. नो, इट टेक्स टाइम. राइट? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. इट इज़ नॉट लाइक इंस्टेंट खाना, like instant food packets. It takes time. Similarly, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न कुछ और था. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म, उसने ऑलरेडी सीड सो कर लिए थे फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और देयर वॉज एन इंटरवल, अ टाइम गैप ऑफ 20 लॉन्ग ईयर्स. मतलब उस सीड्स को ग्रो होने में 20 साल लगे, एंड देन इट ब्लास्टेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन. अब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लीग ऑफ नेशन, जो डिटेल में हम करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बट एट प्रेजेंट ओवर हियर लीग मतलब ग्रुप. तो ग्रुप ऑफ नेशन एक बना था, अमेरिका ने ज्वाइन किया नहीं, रशिया को उसमें जगह दी नहीं गई. दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ. तो काफ़ी रीज़न इस पीस प्रोसेस में ही हिडन थे, जो धीरे 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 ग्रो होने लगे. लोगों में कड़वाहट इंक्रीज हो रही थी, बिटरनेस. लोगों में एक जेलेसी, वंस अगेन द सेम थिंग स्टार्टेड repeating, but this time on a wide scale, on a larger scale, and that we will see later on, which again will be very interesting. And the last part over here is the Russian, or as I told you, Bolshevik Revolution. Now, the last part doesn't mean last part of the chapter. Yes, it is very close to the end of this chapter, but for today's lecture, let's do up till here. So, the Russian Revolution took place in 1917. वो हमने देखा आगे कि क्यों रशिया ने विड्रॉ कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. बिकॉज उसके खुद के ही कंट्री में प्रॉब्लम आ गए थे. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग में, पूरे बिल्डिंग में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नेचुरली यू आर गोइंग टू सेव योर लाइफ, योर हाउस, रादर देन गोइंग एंड सेविंग द नेबर. उनके यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे यहाँ भी वो प्रॉब्लम है, एक साथ पूरे बिल्डिंग में वो प्रॉब्लम हिट हो गई है, लाइक से एनीथिंग इट कुड बी. तो यू सी टू इट कि अपने घर में जब प्रॉब्लम आती है, बाजू में भी प्रॉब्लम है, तो तुम अपने घर को छोड़ के वहाँ नहीं दौड़ोगे. उसी तरह से रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था, लेकिन जब खुद की कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो नेचुरली इट विड्रू. एंड देन दिस रशियन रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1917 इज सेड टू बी एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. द रशियंस हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय ज़ार. तो सी और टी ओवर हियर इज साइलेंट, सो यू हैव टू से ज़ार. तो ये जो ज़ार का रूल था, जो आई वुड से मोर देन 200 ईयर्स ये डायनेस्टी चली थी, तो ये जो ज़ार का रूल था रशिया में बहुत ही क्रुएलिटी से भरा पड़ा था. रशियन ज़ार्स हु इनहेरिटेड द पोजीशन, मतलब कि एक राजा मर गया तो उसके बाद उनके बच्चों ने वो थ्रोन पे आके बैठ गए, एंड देन द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. तो वैसे सेंचुरीज चला उनका. तो रशियन ज़ार्स
who inherited the position were all dictators. मतलब ये हिटलर जैसे थे, पूरे dictators, and enjoyed uncontrolled rule over people. और उनका जो रूल करने का जो तरीका था उसमें यू कैन सी देयर वाज नथिंग लाइक ह्यूमैनिटी, पूरी क्रुएलिटी और अनकंट्रोल्ड रूल उनका. People didn't have any rights during this period of Tsar. The Tsars were so cruel and pitiless. Pitiless मतलब no दया भाव, right? Pitiless on people that if anyone demanded for any rise, that person would be tortured, suppressed मतलब उसको चुप कर दिया जाता and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. अब साइबेरिया ऐसी जगह है जहाँ पे इस बोन चिलिंग कोल्ड मतलब आदमी मर ही जाए. इन्होंने किया ये कि या तो बहुत ख़राब तरीके से टॉर्चर करते, पनिश करते अगर कोई आदमी उनकी कंट्री में खड़ा होता अपनी राइट मांगने, या फिर उससे ऐसी कोई पनिशमेंट देते जहाँ पे वो जाके मर ही जाए अपने आप. दैट वॉज टू सेंड दैट पर्सन टू साइबेरिया. तो दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑपरेसिव जारडम, जैसे हम बोलते हैं ना किंगडम, वैसे जारडम वॉज वेरी क्रूअल, बिकेम द रीजन for sorrow, poverty and suffering among people. And the Russian farmers, laborers, peasants, that is you once again actually we can say over here fishermen, लेकिन अगर farmers नहीं लिखा होता तो we would also say peasants as farmers and fishermen, were not getting enough income in spite, despite मतलब in spite of working hard. बहुत मेहनत करने के बाद भी लेबरर्स और फार्मर्स और फिशरमैन को पैसे नहीं मिलते थे एंड दे स्टार्टेड मूविंग इनटू पॉवर्टी कंडीशन. सो फॉर टुडे वी स्टॉप ओवर हियर एंड रिवाइज इट सो दैट यू कैन लिंक with the next lecture very easily, and as such I shall tell you in a nutshell today's lecture next time, but still you need to revise it on and on. Thank you so much. Take care.